कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि हमने संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हत्या के अलावा ये देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी है। हम डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। Sure that there must be a standard national protocol to ensure that safe conditions of work are provided. This is not a matter of providing protection either to women or protection to doctors in general. It's a matter of creating safe conditions of work. So that they, ultimately, what is equality under the Constitution all about? If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. And therefore, we are entertaining this, and I'll very shortly share the way we want to proceed with this to ensure that ultimately it's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. सीजेआई ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर चिंतित भी हैं। What happened in Kolkata is concerned. There's a couple of things from what we have. Of course, first let me begin by saying that we are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been published all over the media. Correct. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published. Right. Showing her body, after she was subjected to it. It's extremely concerning. By judgments of our court in Nipun Saxena, that you will not publish the names of the survivors of sexual assault. In this case, सीजेआई ने पश्चिम बंगाल से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? क्या पीड़िता ने माता पिता को सूचना देर से दी? उन्हें मिलने नहीं दिया गया? क्या हत्या के तहत एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हजारों लोगों को अंदर क्यों आने दिया? Who was expected to? nobody in the hospital registers the FIR. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? No, they wanted a board. We constituted a board. They wanted a magistrate. We got the magistrate. You don't need time for registration of FIR. You don't need a medical board for registration of FIR. सीजेआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसीलिए सीधा रिपोर्ट कार्ड में दिया जाए। सीजेआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टर्स की भागीदारी हो। सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर्स कोर्ट पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है वे काम पर लौटे। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट की देरी के बाद क्यों एफआईआर दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। वहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बड़ा सवाल है कि 7,000 लोग कैसे अस्पताल में घुस गए, ये बिना पुलिस की जानकारी के संभव नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने राज्य पुलिस के डीजीपी को बदलने की मांग करते हुए कहा कि किसी दूसरे अधिकारी को प्रभारी डीजीपी बनाया जाए। एसजी के कहने पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है, सीआईएसएफ आरजी कर अस्पताल और हॉस्टल को सुरक्षा देगा। RG Kar Medical College and Hospital, because obviously the women doctors have left for the reason that they are fearful of their safety. If the premises of this hospital have to be safeguarded for these doctors to resume duty, who is going to provide security at the premises? Well, we give an undertaking to this court. CISF security. We'll give an undertaking to this court. We'll give an Let it be CISF. सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर्स के पास आराम करने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में सुरक्षा की कमी है। अस्पताल में चिकित्सा पेशेवर के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें एडमिरल आर सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना, दिल्ली एम्स निदेशक समेत 9 सदस्य होंगे, जो 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। साथ ही बंगाल सरकार से भी अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी है। In this backdrop,
formed the view that a national consensus must be evolved after due consultation with all stakeholders on the urgent need to formulate protocols governing the issues which this order has highlighted. We have attempted to compose for this purpose a diverse body of persons with experience in healthcare institutions. A national task force with the following members of the medical profession is hence constituted. इसके अलावा राज्य सरकार से भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सीजीआई ने कहा कि टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी, जिसका काम लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना होगा। कमेटी इन विषयों पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।